हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम अजय रैना अगेन विद यू टेकिंग योर नेक्स्ट क्लास फॉर यू। So dear students, as you know, in the last class, in the previous class, we just started this topic, parallel lines and their properties. In the last class, we just discussed all the theorems related to this exercise. We discussed that all the corresponding angles are equal if the lines are parallel, means if line L is parallel to line M and T is transversal line, then their corresponding angles are equal. Their alternate angles are equal. जो भी हमारे पास alternate angles हैं, those are also equal. Means angle 1 will be equals to angle 7, angle 2 will be equals to angle 8, 3 will be equals to 5 and 4 will be equals to 6. Then we study that कि their co-interior angles या consecutive interior angles or the angles on the same side of transversal are supplementary. Means अगर हम 3 plus 6 करें that is equals to 180 degree, 4 plus 5 करें that is also equals to 180 degree. क्लियर है स्टूडेंट्स, ये सभी प्रॉपर्टीज हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। आज अभी हम उन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अब हमें आगे दिए गए हैं इस एक्सरसाइज में, हम वो सभी क्वेश्चंस आज सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चे, सो बढ़ते हैं तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज इन द गिवन फिगर L is parallel to M and T is transversal line. If angle 1 is angle 1 ratio angle 2 that is equals to 2 ratio 3. क्या गिवन है हमारे पास, L जो लाइन है वो that is parallel to M, T is transversal line. We have given that angle 1 ratio angle 2 that is equals to 2 ratio 3. एंगल 1 और 2 में जो रेशो है that is 2 ratio 3, ये 2 ratio 3 में है। हमें क्या करना है, फाइंड द मीजर ऑफ ईच अदर एंगल्स। जितने भी हमारे पास हैं एंगल्स हैं उसमें एंगल 1 भी है, 2 भी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास एंगल 1 रेशियो एंगल 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 is to 3. So let angle 1 is 2x, so angle 2 will be 3x, and since angle 1 plus angle 2 is 180 degree, so ये रिप्रेजेंट करता है 2x plus 3x that is equals to 180 degree. अच्छा भाई ये बताओ 1 plus 2 180 डिग्री क्यों था बच्चे? Because these forms linear pair. ये लिखना जरूरी है भाई कि ये ऐसा क्यों है। हमने 1 plus 2 180 क्यों लिखा, बुक में तो दिया नहीं है ना अभी तक, इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो दिया हुआ क्या है लेकिन हमें कि हमें ये पता है कि 1 और 2 लीनियर पेयर है, इसलिए 1 plus 2 is 180. So 2x plus 3x is 180. So ये रिप्रेजेंट करता है 5x is equals to 180 डिग्री, या ये कह लीजिए x is equals to 180 upon 5. 5 3s are 15, 5 6 are 30. So x is equals to 36 डिग्री। ये रिप्रेजेंट करता है एंगल 1 is equals to 2x यानी कि 2 into 36 डिग्री that is 72 डिग्री, and angle 2 that is 3x, 3 into 36 that is 108 डिग्री। एंगल 1 आ गया, एंगल 2 आ गया, अब क्या चाहिए? बाकी तो बहुत ही इजी हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एंगल 3 is equals to एंगल 1। क्यों है भाई? 3 और 1 कैसे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, so 3 equals to 1 that is 72 degree, vertically opposite angles, and also 4 is equals to angle 2 that is 108 degree. Why? Because these are also vertically opposite angles. And now angle 5 is equals to 1, angle 6 is equals to angle 2, angle 7 is equals to angle 3, and angle 8 that is equals to angle 4. So 5 is equals to 1 which is 72 degree, 6 is equals to 2 that is 108 degree, 7 is equals to 3, 7 equals to 3, 3 is equals to 72, and this is 108 degree. लेकिन ऐसा क्यों है भाई? 5 1 के इक्वल है, 6 2 के, 7 3 के, 8 4 के इक्वल है, लेकिन क्यों? Because all these are corresponding angles. These are corresponding angles. So angle 1 equals to angle 5, 6 is equals to 2,
7 इक्वल्स टू 3 एंड 8 इज इक्वल्स टू 4। क्लियर स्टूडेंट्स? सो बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अगले क्वेश्चन में हालांकि बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या गिवन है भाई? इन द गिवन फिगर, सपोज करते हैं एक ऐसा ही फिगर दे दिया, लाइन के नेमिंग हो सकता है डिफरेंट हो जाए, लेकिन मेन क्राइटेरिया वही है कि दो लाइंस दोनों पैरेलल्स हैं और हमें दे दिया एंगल 1 विच इज इक्वल्स टू 3x minus 20, this is 3x minus 20 degree, and angle 5 is equals to 2x plus 10। अब की बार आपकी बुक में इनकी नेमिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं गिवन है, उसने सिंपल कह दिया है कि ये दो लाइंस पैरेलल है एंड दीज टू एंगल्स आर 3x minus 20 and 2x plus 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल्स। सो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आप ये बताइए कि 3x minus 20 इज इक्वल्स टू 2x plus 10 होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे भैया? ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो इट रिप्रेजेंट दैट कि 3x minus 2x इज इक्वल्स टू 10 plus 20, ये रिप्रेजेंट करता है x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्या आ गया? x की वैल्यू 30 डिग्री हो गया, तो बहुत ही आसान था। सो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। सो हेंस 3x minus 20 that is 3 into 30 minus 20 यानी कि 90 minus 20 that is 70 degree। So angle is 70 degree and the value of x is 30 degree। Clear है students? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So the next question is in the given figure, एक हमारे पास फिगर गिवन है। अब आप कहोगे सर ये तो थोड़ा सा तिरछा सा बन गया। कोई बात नहीं बच्चे, इस साल में आएगा ही ऐसा फिगर। जो अब तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो दोनों ही क्वेश्चन आपके ये समझ के चलिए 8th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे, लास्ट ईयर आपने किए भी होंगे। अब बात करते हैं आपके स्टैंडर्ड की, 9th स्टैंडर्ड की। सो प्यारे बच्चों, इस फिगर में हमें क्या गिवन है? इन द गिवन फिगर BC इज पैरेलल टू ED, BC इज पैरेलल टू ED एंड AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD। अब आप कहेंगे कि सर ये तो अलग अलग है, बिल्कुल ये तो इसके सामने भी नहीं आ रही। सो प्यारे बच्चों, पैरेलल लाइंस का मतलब ये नहीं है कभी भी कि वो बिल्कुल एक दूसरे के सामने ही होंगी, नहीं। आपको पहचानना है जो आपको गिवन है। सपोज करता है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे और इसको भी आप आगे बढ़ा लो, तो देखिए क्या मिला कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका मतलब एक इधर एंगल बन गया, एक इधर बन गया, एंगल बन गया ना। और ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? जरा आप इसको थोड़ा सा इमेज को घुमा के देखिए, मोबाइल को घुमा लीजिए। क्या मिला आपको कि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो x जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, BCD के। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। देखिए ट्रांसवर्सल लाइन है, x ऊपर है, ये नीचे है, ये अगर हम लेफ्ट में बात करें तो ये राइट में है। क्लियर है बच्चे? तो हमें यहां से क्या मिला? हमें गिवन था सिर्फ एंगल D। तो एंगल जो D था दैट इज 75 डिग्री था। हमें क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो देखिए बच्चे, हमें ये पता है कि सिंस BC इज पैरेलल टू ED एंड ये लाइन इसके पैरेलल है, CD इज ट्रांसवर्सल लाइन। इसके लिए क्या हो गया? CD इज ट्रांसवर्सल लाइन। CD इज ट्रांसवर्सल लाइन, CD ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो गए आपस में? को इंटीरियर एंगल्स हो गए। इसका मतलब एंगल BCD प्लस एंगल CDE दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स बच्चे क्या हो गए? सो को इंटीरियर एंगल्स हो गए 180 डिग्री। सो BCD आपके पास क्या है? आप इसको BCD ही लिखेंगे। CDE क्या है? दैट इज 75 डिग्री, that is equals to 180 degree. So this represent that angle BCD is equals to 180 degree minus 75 degree, that is equals to 105 degree। अब हमारे पास BCD तो आ गया,
लेकिन हमें चाहिए वैल्यू ऑफ x। सो अब आगे बढ़ते हैं कि नाउ AB इज पैरेलल टू CD। AB जो लाइन है ये पैरेलल CD के है एंड BC ट्रांसवर्सल। BC कैसी है? BC इज ट्रांसवर्सल। सो एंगल ABC विल बी इक्वल्स टू एंगल BCD। क्यों होंगे भाई? ये होंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे, इसलिए दोनों इक्वल है। सो इट रिप्रेजेंट दैट एंगल ABC इज इक्वल्स टू BCD। BCD क्या हमने निकाला था? दैट वाज 105 डिग्री। सो ABC इज 105 डिग्री। इट रिप्रेजेंट दैट x इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। यही तो चाहिए था हमें। So angle x that is equals to 105 degree. Clear students? Take a screenshot, then we will move to the next question. The next question is, आपको गिवन है फिगर में AB एक लाइन है, EF भी एक लाइन है, CD is also a line। तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल है। क्या गिवन है? AB is parallel to CD, parallel to EF। तीनों लाइन्स आपस में पैरेलल है एंड टू लाइन्स BC जो इंटरसेक्ट करती है AB और CD को, एंड देयर इज EF पैरेलल टू CD और इसको इंटरसेक्ट करती है CE। क्लियर है? अब हमारे पास क्या था? सोल्व करते हैं। इसके अलावा हमें गिवन है एंगल ABC दैट इज 70 डिग्री, एंगल CEF दैट इज 130 डिग्री एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल X। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ये x को कैसे फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले यही सोचना है। देखिए बच्चे, जब ये लाइन इसके पैरेलल है, व्हेन AB इज पैरेलल टू CD एंड BC ट्रांसवर्सल, BC ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब हो गया हमारे पास जो एंगल बनेगा ABC दैट इज इक्वल्स टू एंगल BCD। ध्यान रखिएगा, पूरा ABC दैट इज इक्वल्स टू BCD। ये कंप्लीट एंगल है BCD। ये दैट इज इक्वल्स टू दिस क्यों है? बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल्स है भाई ये? दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, ABC हमारे पास 70 डिग्री है, सो BCD एंगल BCD दैट इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। पहली बात आ गई, दैट इज BCD जो है हमारे पास वो आ गया 70 डिग्री। प्यारे बच्चों, जब हमें ये पूरा एंगल तो मिल गया है, हमें क्या चाहिए? ये चाहिए x। हमारे पास ऑलरेडी क्या है? ये तो नहीं है, हमें ये चाहिएगा। हम इस पूरे एंगल में से अगर ये माइनस कर दें तो x मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात आई कि ये एंगल कितना होगा? ECD। हम देखते हैं कि नाउ EF is parallel to CD and CE transversal CE हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ECD प्लस एंगल CEF दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? को इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे हैं? co-interior angles. So these are co-interior angles means their sum is 180 degree. हमारे पास ECD हमें find out करना है, ECD plus CEF that is already 130 degree that is equals to 180 degree. It represents that angle ECD is equals to 180 degree minus 130 degree which is equals to 50 degree. ECD भी हमारे पास आ गया है और पूरा BCD भी हमारे पास है, तो क्या हम BCE निकाल सकते हैं? वेरी इजीली। नाउ सिंस एंगल BCD दैट इज इक्वल्स टू एंगल BCE प्लस एंगल ECD। BCD जो है दैट इज इक्वल्स टू BCE प्लस ECD। BCD की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी दैट इज 70 डिग्री इज इक्वल्स टू BCE दैट इज x प्लस ECD दैट इज 50 डिग्री। तो ये रिप्रेजेंट करता है, सो x इज इक्वल्स टू 70 माइनस 50 दैट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? दैट इज 20 डिग्री।
सो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन को पहले देखिए, हम कौन सी चीज कहां से निकाल सकते हैं, बस इसमें यही ट्विस्ट है। अगर हमें पता चल गया कि हमें इसको निकालने के लिए उससे पहले क्या चाहिए और उससे पहले क्या चाहिए, देन वी कैन सोल्व ऑल द क्वेश्चंस वेरी इजी। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन it is given that AB is parallel to CD. AB लाइन CD के पैरेलल है, दो एंगल्स ये आपको गिवन है, AEF that is 75 डिग्री and EGD that is 125 डिग्री। आपको क्या करना है, आपको करना है X, Y और Z को फाइंड आउट करना है। क्लियर है? जो मेन चीज हमारे पास है that is AB पैरेलल CD। आप एक बात ध्यान से देखिए, अगर ये एंगल, ये कंप्लीट एंगल, क्या ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है? यस, ऑफ कोर्स इट इज इक्वल। कैसे है भाई? ये लाइन इसके पैरेलल है, सेंस AB पैरेलल टू CD एंड EG ट्रांसवर्सल, एंड EG ट्रांसवर्सल, EG ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल AEG is equals to angle GEGD. AEG will be equals to EGD. AEG आपके पास क्या है? that is 75 डिग्री प्लस Z, क्योंकि 75 इतना है, ये Z है, तो AEG कितना हो गया पूरा? that is 75 plus Z which is equals to EGD that is 125 डिग्री, 125 डिग्री। So it represents that Z degree is equals to 125 minus 75 that is equals to 50 डिग्री। So ये हमारे पास आ गया Z is equals to 50 डिग्री, एक वैल्यू आ गई। अब बढ़ते हैं आगे। आगे भी हमारे पास कई प्रॉपर्टीज है कि हम सीधा सीधा दिखा सकते हैं। अब नाउ AB is parallel to CD and EF ट्रांसवर्सल, EF ट्रांसवर्सल लाइन, EF ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसका मतलब ये हो गया, सो एंगल EFG इज इक्वल्स टू एंगल FEA या AEF। क्यों है भाई? ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स है, ये भी कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। ये भी जो हमने ऊपर पहले दिखाया, ये भी क्यों थे इक्वल? दीज वर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स, दीज वर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स, दीज आर ऑल्सो ऑल्टरनेट एंगल्स। ये रिप्रेजेंट करता है EFG दैट इज 100, सॉरी EFG दैट इज Y डिग्री which is equals to AEF, this is 75 डिग्री। सो Y जो हमारे पास है that is equals to 75 डिग्री, ये 75 आ गया और ये आ गया आपके पास 50 डिग्री। अब हमारे पास रह गया X। अब आप यहां पर बहुत इजीली देख रहे हो कि सिंस X प्लस Y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है? क्योंकि भैया ये बना रहे हैं लीनियर पेयर, दिस फॉर्म्स है लीनियर पेयर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? X की हमें निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y? Y की हमने अभी फाइंड किया, दैट इज 75 डिग्री। So this is equals to 180 degree. So it represents that X is equals to 180 minus 75, that is 105 degree. So in this way we just found out the value of X, that is 105 degree. Clear है मेरे बच्चे? X की 105 आ गई, Y is 75 degree and Z is 50 degree. Clear है? So take a screenshot and then we will move to the next question. So dear students, next question is इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, एंगल ABE दैट इज 35 डिग्री, एंगल CDE दैट इज 65 डिग्री, दिस इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ X, X इज टू बी फाइंड। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर याद रखिएगा ये फिगर या इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास और भी आ सकते हैं। हो सकता है आपसे वो ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, या हो सकता है फिगर आपके पास ये इस तरीके से बनी हुई आ जाए। ठीक है ना? इस तरीके की कोई भी फिगर आती है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कि ड्रॉ
a line PQ parallel to AB parallel to CD through या passing through the point E. E पॉइंट से होके जाने वाली एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से. सो दिस इज P, दिस इज Q. E पॉइंट से होके जाएगी और वो AB और CD दोनों के पैरेलल होगी. अगर फिगर ऐसा होता किसी और क्वेश्चन में तो भी वो लाइन ऐसे जानी थी. फिर आपके पास ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे? कोइंटीरियर्स. एंड ये एंगल और ये एंगल भी कोइंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे. एंड देन यू कैन फाइंड आउट दिस कंप्लीट एंगल. फिर क्या करेंगे? इसके हेल्प से ये निकालेंगे, इसके हेल्प से ये दोनों को ऐड करके ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा. ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा इसी तरीके का. कोई भी अब आता है ऐसा क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख लीजिए क्या हम इसमें कोई एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें. सो हमें क्या करना है, यहां पर हमने PQ एक लाइन ड्रॉ कर ली. अब हमें निकालना है X. सो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखिए इसको और एक बार हम निकालेंगे इसको. बहुत ही इजी हो जाएगा. यहां पर हमें क्या गिवन है? नाउ AB पैरेलल किसके हो गई? अब PQ के. हमने अभी कंस्ट्रक्शन किया है. एंड BE ट्रांसवर्सल. BE इज ए ट्रांसवर्सल लाइन. BE हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल BEQ. क्यों है भाई ये? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एंगल्स. कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स. तो ये रिप्रेजेंट करता है. सो एंगल BEQ इज इक्वल्स टू BEQ किसके इक्वल है? ABE के. एंड AB इज 35 डिग्री. BEQ अभी हमारे पास आ गया है. एंड नाउ हम देखते हैं अब कि नाउ PQ इज पैरेलल टू CD. PQ किसके एक पैरेलल है? PQ इज पैरेलल टू CD. एंड दिस लाइन यानी कि DE इज ट्रांसवर्सल लाइन. DE इज ट्रांसवर्सल. D इज ट्रांसवर्सल लाइन. D ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल QED इज इक्वल्स टू एंगल EDC. Why? Because these are also alternate angles. These are also alternate angles. So ये रिप्रेजेंट करता है QED. QED that is equals to angle EDC and EDC is 65 degree. ये हमारे पास सेकंड चीज आ गई. So what is the value of X? So X is equals to, X किसके इक्वल था हमारा? That was angle BEQ प्लस एंगल QED. इन दोनों का सम. अगर आप इसका और इसका सम कर दें, ये प्लस ये, तो क्या बन गया आपके पास? ये पूरा एंगल आ गया. दैट इज X. सो X की वैल्यू क्या आ गई अब हमारे पास? दैट इज 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री. सो इट रिप्रेजेंट दैट X इज इक्वल्स टू 100 डिग्री. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है. ये फिगर आप देख रहे होंगे. इस फिगर में हमें गिवन है कि जो AB लाइन है दैट इज पैरेलल टू CD. AB तो CD के पैरेलल है. ये जो एंगल दिया गया है DCE दैट इज 130 डिग्री. BAE दैट इज X डिग्री. AEC दैट इज 20 डिग्री. हमें फाइंड आउट करना है X. प्यारे बच्चों, अभी जितना फिगर हमें गिवन है इतने फिगर से हमारा काम नहीं चलेगा. और ये फिगर अभी इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, अपने तरफ से कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. क्योंकि अभी ये तीनों आपस में किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है. तो रिलेट करने के लिए क्या होगा कि हमें कोई ना कोई लाइन या तो पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी अलग से, या जो पैरेलल लाइंस है इन्हीं को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा. तो हमने क्या किया? हमने इसमें क्या सॉल्यूशन में कि प्रोड्यूस DC टू, हमने क्या किया? DC जो लाइन है इसी को आगे प्रोड्यूस कर दिया. P तक सपोज करते हैं प्रोड्यूस क्या है? टू P विच इंटरसेक्ट AE एट P ले लो. ये P पॉइंट यहां पर हमने ले लिया कि जो AE को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है. अब देखिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल था CPE. एक ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल के अंदर
इस ट्राइंगल के अंदर ये और ये एंगल का अगर आप सम करें तो वो इसके इक्वल आएगा। क्यों आएगा? दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है? दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। लास्ट ईयर आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। हमने क्या लिया कि एन ट्राइंगल CPE, ध्यान से देखिएगा फिगर CPE में, इन ट्राइंगल CPE एंगल DCE इज एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल एक्सटीरियर एंगल है? DCE। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एंगल DCE इज इक्वल्स टू एंगल CPE प्लस एंगल PEC। इन दोनों एंगल्स का सम जो है दैट इज इक्वल्स टू दिस। तो DCE दैट इज 120 डिग्री, CPE हमें नहीं पता है क्योंकि ये तो हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया है, एंड PCE दैट इज 20 डिग्री। सो इट रिप्रेजेंट दैट एंगल CPE इज इक्वल्स टू 120 डिग्री माइनस 20 डिग्री, सो दैट इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। तो हमारे पास में ये था 20 डिग्री और ये आ गया अब हमारे पास में 100 डिग्री। और अब हमारा जो मेन एक्सरसाइज है पैरेलल लाइंस की वो यहां पर यूज होगी। सो नाउ अब हमारे पास क्या आ जाता है? DP इज पैरेलल टू AB। DP जो लाइन है वो AB के पैरेलल है, एंड AE ट्रांसवर्सल। AB क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। AB ट्रांसवर्सल लाइन है, इसका मतलब ये जो एंगल है ये इसके इक्वल हो गया। सो इट रिप्रेजेंट दैट एंगल BAE इज इक्वल्स टू एंगल DPE। और क्यों है भैया? ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स है भैया? ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो हमें क्या मिल गया? BAP क्या है? दैट इज X, एंड DPE क्या है? अभी तो निकाला था, दैट इज 100 डिग्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? वैल्यू ऑफ X इज 100 डिग्री। क्लियर है बच्चे? देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन दिस फिगर को देखिएगा ध्यान से, पहले फिगर समझिएगा उसके बाद क्वेश्चन को। AB लाइन जो है वो CD के पैरेलल है, पहली चीज। EF एक लाइन सेगमेंट है, लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंट्स पर, दैट इज E एंड F, विच इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। EG और FG दो लाइंस अलग से ड्रॉ की गई हैं, दो लाइन सेगमेंट जो G पर मिलते हैं। अब हमारे पास में ये 75 डिग्री है, BEG दैट इज 20 डिग्री, F यानी कि EFG दैट इज 25 डिग्री, GFD दैट इज Y डिग्री, एंड दिस इज एंगल X डिग्री। हमें क्या करना है? हमें ये X और ये Y ही फाइंड आउट करने हैं। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में नंबर्स बहुत सारे दिए गए हैं, फिगर थोड़ा सा बड़ा है, बट क्वेश्चन उतना ही इजी है। कैसे इजी है? देखिएगा। हमें यह पता है कि AB इज पैरेलल टू CD एंड EF ट्रांसवर्सल EF जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल बना ये किसके इक्वल होगा? ये इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। सो इट रिप्रेजेंट दैट 25 डिग्री प्लस Y इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। क्यों है भैया? इसलिए है क्योंकि यह है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे एंगल्स है भाई? ये है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो इसका मतलब हो गया कि Y इज इक्वल्स टू 75 माइनस 25 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो Y हमारे पास क्या है? Y हमारे पास हो गया 50 डिग्री। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं, पहले अब निकालना पड़ेगा ये वाला एंगल। अगर हमारे पास में एंगल आ गया तो हम ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। ये है, ये आ जाएगा, ये हमारे पास है और इसको हम निकाल लेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। करेंगे कैसे भैया? देखिए ये प्लस ये तीनों एंगल्स का सम कितना है? कि सिंस 75 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल दिस यानी GEF प्लस एंगल GEF दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है? अभी पढ़ा था हमने पिछली कुछ क्लासेस में, क्या पढ़ा था? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ लाइन।
एक लाइन के सेम साइड और एक ही पॉइंट पर है, तो इन सभी एंगल्स का सम दैट इज 180 डिग्री। दिस इज 75 प्लस 20 हो गया 95। सो एंगल GEF इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री, सो दैट इज इक्वल्स टू 85 डिग्री हो गया एंगल GEF, that is 85 degree. So now in triangle EFG, इन ट्राइंगल्स में हमारे पास एंगल FEG या GEF कह लीजिए, प्लस एंगल EFG प्लस x डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब हमारे पास FEG या GEF दैट इज इक्वल्स टू 85 डिग्री प्लस EFG दैट इज 25 डिग्री प्लस x दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये रिप्रेजेंट करता है x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। 85 प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 110। सो x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। हमें क्या मिल गया? x की वैल्यू मिल गई दैट इज 70 डिग्री, y की वैल्यू हमारे पास क्या थी? दैट इज 50 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में कई अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन को सिंपल इसी सीक्वेंस में करें, आप और भी किसी सीक्वेंस में कर सकते हैं। कैसे? ये एंगल प्लस ये एंगल पूरा 180 डिग्री था, कहीं पर आप ये प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते थे, है ना। तो कोइंटीरियर्स की यहां पर यूज हो सकती थी, कोरस्पॉन्डिंग की हमने यूज की ही है। तो एक क्वेश्चन को करने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है बच्चे। तो बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि आप इससे अलग भी कोई मेथड यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बशर्ते कि वो जो प्रॉपर्टीज हैं उनके अकॉर्डिंग सही हो। क्लियर है बच्चे? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे, बाकी जो हमारे क्वेश्चंस बचे हैं, और हाँ एग्जांपल्स जरूर करेंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं करूंगा और आपको सभी के सभी एग्जांपल्स जरूर करने हैं। एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे एग्जांपल्स आपके इस बुक में गिवन भी है, तो आपको क्या करना है? एग्जांपल्स भी जरूर करने ट्राई। नेक्स्ट क्लास से पहले आपको इसके सभी एग्जांपल्स ट्राई करने हैं। जो समझ में ना आए वो नेक्स्ट क्लास में आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं इसके, और कुछ आपके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, घर के अंदर रहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।